Welcome to Tathastu Institute of Civil Services. The topic for today's discussion is International Criminal Court. This topic is important because last week ICC has issued arrest warrants against Israeli Defense Minister. So it is important for us to know what is ICC and how does it function. But before we move ahead, I would like to show you a video. The International Criminal Court has issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, his former defense minister, and Hamas leader. The ICC accuses Netanyahu and Defense Minister Gallant of war crimes in Gaza. The order labels Netanyahu and others as internationally wanted suspects. Netanyahu and other Israeli leaders called the warrant request disgraceful and anti-Semitic. US President Joe Biden also blasted the prosecutor and expressed support for Israel's right to defend itself against Hamas. Hamas also slammed the request. Without wasting much time, let us directly dive into the topic. So ICC, the full form of ICC stands for International Criminal Court, and what it is simply a permanent judicial body. It is a permanent judicial body which was established in 1998. How was it established? It was established as a result of Rome Statute. So there was an international treaty known as Rome Statute signed in 1998, as a result of which ICC was established. ICC is responsible for investigating specific crimes, but against individuals. What are those crimes? Those crimes are genocide, war crimes, crimes against humanity and crimes of aggression. हो सकता है ये नाम आपको बहुत मिलते जुलते लग रहे हो कि जेनोसाइड और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम में क्या फर्क है। आइए इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जेनोसाइड का सिंपली मतलब यह है, अगर आप वर्ड तोड़ेंगे, सो जीन side means to kill, genes means to the DNA. So to eliminate the DNA. So when the killings are happening based on the ethnicity or race of a group of people, to eliminate such ethnic people or such racial people, such an act is known as genocide. Then we have war crimes. War crimes are simply gravest crimes, most serious crimes which are committed at the time of war. When the war is going on between two countries and crimes are committed, such crimes are considered as war crimes. Then we have crimes against humanity. Such crimes in which innocent and civilians are targeted with no cause for their fault. Moving ahead, crime of aggression. Crime of aggression is simply when a political or a military leader is perpetrating acts against a nation. When a leader is responsible for giving the orders to show aggression activities or infiltration against a nation. Now, what was Rome Statute? Rome Statute was simply an international treaty which was there to investigate such crimes, such acts in which the states responsible are not willing to do so. अगर कहीं पर इंटरनेशनल एरिना में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कोई ऐसे क्राइम्स है जो कंट्री खुद नहीं करना चाहते, दे आर अनविलिंग, या खुद नहीं कर सकते, वो दो कंट्री के बीच की बात है, तो दे आर अनएबल टू, आइदर द कंट्रीज आर अनविलिंग और अनएबल टू, अगर दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो है, देन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट विल हेल्प इन इन्वेस्टिगेटिंग सच क्राइम्स. इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर हेग में है. हेग कहां है? नीदरलैंड्स में. दो वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आईसीसी किसी को सजा सुनाता है तो उसको रखा कहां जाएगा, उसकी जेल कहां है? तो आईसीसी की जेल डिटेंशन सेंटर अकोमोडेट्स कन्विक्टेड बाय द कोर्ट. दे आर 12 सेल्स, 12 कमरे रखे गए हैं ऑन द प्रेमिसेस ऑफ एक हेग में ही, नीदरलैंड्स में हेग में ही आईसीसी के हेडक्वार्टर्स के पास एक जेल बनाई है, पीनल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर 12 रूम्स हैं जहां पे आईसीसी अपने कन्विक्ट्स को रखती है. अब आपको हो सकता है यह भी लगे कि आईसीसी और आईसीजे
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, इन दोनों में क्या फर्क है? तो इन दोनों को फर्क समझने के लिए एक छोटा सा टेबल लाया हूं मैं, जिसमें हम ये समझते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस की बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। सिमिलरली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर्स सारे यूएन के मेंबर्स होंगे, जो जो यूएन का मेंबर है वो आईसीजे का भी मेंबर होगा। हाउएवर क्योंकि आईसीसी एक इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर हर एक को अलग से मेंबरशिप साइन करनी पड़ती है आईसीसी के लिए। देयरफॉर हम ये समझते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सारे मेंबर स्टेट्स हैं। आईसीजे कौन से टाइप के केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है? जहां पर दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो। लेकिन आईसीसी कौन से टाइप के क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है? दो कंट्रीज के बीच में नहीं, इंडिविजुअल्स के बीच में। इंटरनेशनल एरिना में इंडिविजुअल्स के बीच में सीरियस क्राइम्स, कौन से क्राइम्स? जेनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या क्राइम्स ऑफ अग्रेशन। कंट्री को प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। हम देखते हैं दोनों का हेडक्वार्टर का है, दोनों का हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड्स में। क्या आईसीजे अपने डिसीजंस को एनफोर्स करा सकता है? नहीं करा सकता, वो यूनाइटेड नेशंस पर डिपेंड करता है। सिमिलरली क्या आईसीसी अपने डिसीजंस को एनफोर्स करा सकता है? वो भी नहीं करा सकता। इट डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर्स। तो ये कुछ मेंबर्स, कुछ डिफरेंसेस आपको दोनों पॉइंट्स के, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में पता होने चाहिए। अब अगर हम बात करें मेंबरशिप, कौन कौन मेंबर है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का? एज ऑफ अक्टूबर 2024 देयर आर 125 कंट्रीज। क्या इसमें इंडिया आता है? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना कोई भी नहीं है, ना इन्होंने कभी रैटिफाई किया, ना कभी इन्होंने साइन किया। सिमिलरली इजराइल, यूएसए एंड रशिया, all three had signed the treaty in 1998, but they never ratified. They withdrew from the treaty and they withdrew in the year 2000. So they never became the member of ICC. तो याद रखना है, इजराइल, यूएसए और रशिया तीनों ही आईसीसी के मेंबर नहीं है। सिमिलरली इन्होंने ज्वाइन करके अपने आप को विड्रॉ किया। सिमिलरली इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ने कभी ज्वाइन ही नहीं किया। ईरान साइन बट नेवर रैटिफाई द ट्रीटी। सिमिलरली ईरान ने भी साइन किया है, लेकिन इसने कभी रैटिफाई नहीं किया है। साइन और रैटिफाई में क्या फर्क है? साइन में एक पॉलिटिकल लीडर साइन करता है ट्रीटी, रैटिफाई में उस कंट्री की पार्लियामेंट उसको पास करती है। तो ईरान की पार्लियामेंट ने इस ट्रीटी को अप्रूव नहीं किया, इसलिए ये रैटिफाई नहीं हुआ, इसलिए ईरान भी मेंबर नहीं है। पैलेस्टीन मेंबर बन चुका है। तो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू रिमेंबर दैट Israel is not a member of ICC, but Palestine is a member of ICC. Similarly, the entire European Union is a member of ICC. The latest entrants, the latest members of ICC are Ukraine and Armenia. एक आपके लिए डायग्राम भी लाया हूं, एक फिगर भी लाया हूं, वर्ल्ड मैप भी लाया हूं, जिसमें आप देख सकते हैं all the countries that are in red color are not the members of ICC. Similarly, all the members of in green color, all the countries in green color are the members of ICC. अगर आप समझ पा रहे हैं तो रशिया और यूएसए और ये सब ऑरेंज कलर में, क्योंकि ये साइन करके विड्रॉ कर गए और रेड वाले कभी साइन ही नहीं किए थे। नाउ मूविंग अहेड, कॉम्पोजिशन। आईसीसी में कितने लोग होते हैं? टोटल 18 जजेस आर प्रेजेंट इन आईसीसी। सबका टेन्योर 9 साल का होता है और एक बार ये मेंबर बन गए, इनको बार बार रिन्यू नहीं किया जाता। दे आर नॉन रिन्यूएबल टेन्योर। ये 18 जजेस जो हैं ये 3 डिवीजन में बैठे होते हैं। 6 जजेस प्री ट्रायल डिवीजन में बैठते हैं, 6 जजेस ट्रायल डिवीजन में बैठते हैं और 6 जजेस अपील डिवीजन में बैठते हैं। प्री ट्रायल डिवीजन में अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है, ट्रायल डिवीजन में उस पर कार्रवाई की जाती है और गिल्टी या इनोसेंट प्रूफ किया जाता है, और अपील डिवीजन में इस जजमेंट के अगेंस्ट अपील करने की संभावना होती है। सो 18 जजेस हैं जो 3 डिवीजन में डिवाइड होते हैं। इस कोर्ट का हेड कौन होता है? इस कोर्ट का हेड होता है प्रेसिडेंट और उसके पास होते हैं 2 वाइस प्रेसिडेंट। टोटल 3 लोग की टीम होती है। ये 3 लोग कहां से आ रहे हैं? इन्हीं 18 जजेस में से कोई एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा और 2 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईसीसी जब इजराइल मेंबर ही नहीं है तो हमारी न्यूज क्या है? हमारा न्यूज आर्टिकल बोलता है इन आईसीसी अरेस्ट वारंट फॉर वॉर क्राइम्स against Israeli Prime Minister, issues arrest warrants against Israeli Prime Minister, Defense Minister and Hamas leader. तो जब इजराइल मेंबर ही नहीं है आईसीसी का तो उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट कैसे आ जाएगा? उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इसलिए आएगा क्योंकि अब हम देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीसी। तो आईसीसी का ज्यूरिसडिक्शन क्या है?
आईसीसी कौन सी टाइप के केस सुन सकता है? आईसीसी कैन हियर ओनली दोज काइंड ऑफ केसेस वेयर, नंबर वन कंडीशन, if the country where the offense, what kind of offense? War crime, genocide, crimes against humanity or crimes of aggression. If the country where the offense has been committed is a member of ICC. अगर country member नहीं है, the perpetrator's country of origin is party to the ICC. ICC may only exercise jurisdiction if the national court is unable or unwilling. जिस जगह पे क्राइम हो रहा है वहां का जो कोर्ट है वो करने के लिए सक्षम नहीं है या वो करना नहीं चाहता ट्रायल, तो आईसीसी के पास जाएंगे. एंड आईसीसी हैज जुरिडिक्शन ओनली फॉर ऑफेंसेस कमिटेड आफ्टर द ट्रीटी केम इनटू फोर्स, दैट इज आफ्टर 2002. इससे पहले के क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा, 2002 के बाद को ही किया जाएगा. तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इजराइल के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट कौन सी क्राइटेरिया के अंदर आया है? पहली क्राइटेरिया के अंदर आया है, क्योंकि द कंट्री वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, पैलेस्टीन मेंबर है. तो पैलेस्टीन में हुआ है तो ही हम कह रहे हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट किया है, जबकि इजराइल मेंबर नहीं है. तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई और हाउ आईसीसी वाज एबल टू इशू अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज इट इज अक्यूज्ड, द इजरायली प्राइम मिनिस्टर इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग वॉर क्राइम्स अगेंस्ट पैलेस्टीन विच इज अ मेंबर ऑफ आईसीसी. एक और कंडीशन है, when a situation is not within the court's jurisdiction, यानी इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता, then with special permission from United Nations Security Council, ICC can get the jurisdiction of such a crime. So you can remember, ICC is not a member of United Nations, but if United Nations Security Council can give the permission, then ICC can also investigate such crimes. Finally, I have brought you a question and I would like all of you to answer this question in the comment section. Question simply ये है, क्या इंडिया अभी तक मेंबर नहीं है, ये हमने पढ़ लिया है, लेकिन क्या इंडिया को आईसीसी का मेंबर बनना चाहिए, और क्या इंडिया आईसीसी का मेंबर बन के पाकिस्तान के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करा सकता है? इस क्वेश्चन का जवाब हमें आप कमेंट सेक्शन दीजिए. हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक हम फिर से एक और आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे. तब तक के लिए थैंक यू.